Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. Tonight, we're going to have a culmination of all that we've learned. If you have not been able to keep up with all the other sessions, let's just pay attention to this one because it is going to show us how, with consistency, we can adapt to a better lifestyle for an improved health span. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award, and he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto the virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Today we are going to sort of take every bit of information that we have put in various sessions and try and, condense it so that you get one session at least where you see what this whole holistic health program is all about. I just hope that you had your early dinner and done some exercise. It is such an vital aspect of good holistic health that a little bit of movement goes a long way in improving your overall health. Technology is increasing rapidly, and because of that rapid advancement in technology, life is becoming easier and easier. Easier and easier life means lifestyle is becoming more and more sedentary. More and more sedentary lifestyle means you're going to, have lifestyle challenges. So instead of, getting very quickly and popping pills, try and work a little bit on your lifestyle, which is the lifestyle is what has created the lifestyle problem. So if you just change the lifestyle, which has created the problem, you will find that you're in a very good space where you'll be able to, really take charge of your health. I often tell people that, you have a six-pack. All you need to do is to remove the excess around it. And even, I joke around mainly that even if you were to do sit-ups during a bad commercial, even watching TV, all right, you will have a flat stomach. But I can assure you that many people will die with a flabby stomach. And the only reason is because the excess weight, I can, on this Zoom platform, I can now remove my shirt and show you, my abs, but you can virtually see, I don't need to do that because you can see that the excess is not there. So I was just wondering that what really happens? Why would people not be so interested, in seeing your six-pack and, feeling good about it and actually really improving your holistic health? There is this constant communication that goes on between the flap that is developed over there, and your brain. Your brain wants to see the six-pack, but then there is this communication that goes on. The flap tells the brain, okay, look, it's taken me years to get into this position. So I'm pretty strong and I'm like, holding my own over here. So don't try any stunts because it is not easy to get rid of me. And the brain says that, hey, listen, I'm stronger than you, I'm more powerful than you, and I can do what I want to do. And then the brain tries to tell you, okay, no, you must exercise, you must do the sit-ups. And then you start doing a little bit of that. And then the flab over there replies back saying, see, you have tried, but I'm not really moving. And it is this communication that most people get lost in. So try and have a little bit control over your mind, control your mindset, because if your thinking doesn't change, nothing changes. And that is the whole hallmark of this community that we are trying to grow. We're trying to make a complete effort to change your mindset so that you think differently.
This is the main reason why diets don't work. This is the main reason why we don't recommend diets, because that's not a practical way of living your entire life. But if you understand that what's good for you and what's bad for you, and even if you're doing the bad stuff, you do a little bit of it, you will still be gradually moving in the right direction towards your holistic health. So listen to Manoj very carefully, because what Manoj has to share is, amazing. After the transformation journey that he has been through, he was in triple figures, and then gradually he, brought this whole weight around. And when you really see his transformation journey, sometimes you sort of, can't even believe that such a transformation journey is possible, slowly and surely, by following small little tidbits of this community program. So over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. Am I audible to everyone? Yeah, I think. So all credit, as always I say, goes to Farooq Tarapur for my transformation. एक minute. Yeah. Screen visible? Yes, yes, it is. Thank you very much, and thanks, Farooq. Thanks a lot. And when I say thanks a lot, it means a lot to me really, because it is not only transformation; it is the belief which you have put in my mind कि कुछ भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो, है ना? और वही बिलीफ अंदर आया है। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मुझे ज़्यादा जो बड़ी बात लगती है वो ये है कि 2021 में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया और आज है 25, एग्जैक्टली 4 years वजन कम करने के बाद, एंड विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 40-45 kg रिड्यूस करने के बाद, आई एम एबल टू मेंटेन दैट. दैट इज द बेस्ट पार्ट which I've liked about this program, whole program. तो आज के बारे में हम बात करेंगे बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स. तो ये हेल्दी हैबिट्स क्यों लिखा गया है, सिर्फ हैबिट क्यों नहीं लिखा गया है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर जाती हैं. मैं आजकल नॉर्मली लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, लोग मुझे वो कहते हैं कि यार मैंने अपना वजन कम करना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ आजकल, तो कोई एक चीज़ पर्टिकुलर बताएंगे हो? मैं आजकल ग्रीन टी पीना चालू कर दिया हूँ, मैंने आजकल कार्ब खाना कम कर दिया है, कोई भी एक चीज़ है ना. ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बता रहे मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. कुछ बोलते हैं कि मैंने आजकल वॉकिंग चालू कर दी, इसलिए मैं अपना वेट कम करने के लिए कर रहा हूँ, हेल्दी रहने के लिए कर रहा हूँ. बट नहीं, एक सिंपल सवाल अगर आपसे पूछें, अगर आपको डिफरेंस पता है चावल में और भात में, दो अलग अलग चीज़ें, चावल और भात, और आप किसी को भी एक सीधा एक सवाल पूछिए कि आपको अगर चावल से अगर भात बनाना है, आपको क्या क्या चीज़ लगेगी बताइए. मोस्ट पीपल विल से यू नो व्हाट, चावल, पानी, शायद नमक. मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा और चावल, पानी और नमक दे दूंगा, क्या तुम उसे बना लोगे? बोलते हैं हाँ. फिर मैं उनको पूछता हूँ बताओ कैसे? तो बोलते हैं हम पहले चावल को धोएंगे. मैं बोला किस में धोओगे? फिर उनको याद आता है उन्हें पतीला भी चाहिए, फिर वो ऐड करते हैं पतीला. फिर मैं उनको पूछता हूँ आगे. वो धोने के बाद हम उसको गैस पे रखेंगे पकाने को. बोला गैस तो आपने मांगा ही नहीं. फिर वो बोलते हैं गैस चाहिए. बोला ठीक है मैंने आपको गैस दे दिया, क्या करोगे? बोलते गैस पे. बोला गैस पे कैसे रखोगे? बोलता है नहीं वो रहता है ना गैस के ऊपर रखा जाता है. बोला नहीं, वो स्टोव के ऊपर रखा जाता है. शायद अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सिर्फ चावल से भात पकाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगती हैं, तकरीबन 8 चीज़ें जो लगती हैं, मैंने जो गिना है अभी तक 8 चीज़ें लगती हैं. आपको कैसे लगता है जो इतनी सिंपल चीज़ के लिए आपको 8 चीज़ें लगती है और आप चाहते हो कि अच्छा हेल्थ आपको मिल जाए सिर्फ एक चीज़ करके, या सिर्फ 2 चीज़ करके, या सिर्फ 3 चीज़ करके? नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी. और बहुत, जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, काफ़ी आसान चीज़ें हैं. और आसान चीज़ें तभी होती हैं जब आप उसको अपनी आदत बना लो. आप वो दिन याद करिए जब भी आपको ज़बरदस्ती ब्रश कराया जाता था, या आपने अपने बच्चों को ब्रश कराया होगा, या अपने पोतों को ब्रश कराया होगा,
तो बच्चे कितना चिल्लाते हैं, रोते हैं। लेकिन वही जब आस्ते आस्ते उनकी आदत बन जाती है, खुद सुबह उठ के पहले बाथरूम में जाके पहला पेस्ट में ब्रश ही लगाएंगे, तो सॉरी ब्रश में पेस्ट ही लगाएंगे सबसे पहले। ना दैट इज हैबिट। कई लोगों को बंबई की ट्रेन की गर्दी में जाना उनको आसान लगता है, क्योंकि हैबिट। 2002 तक मुझे भी वो आदत थी, तो मुझे कुछ फील नहीं होता था। आज अगर मुझे थोड़ा भी जाना पड़ता है तो मुझे सोचना पड़ता है 2 दिन पहले से कि मैं कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, कितने बजे निकलूंगा, कौन सी खाली निकलेगी। आदत एक बार हो जाए तो चीजें आसान लगने लग जाती हैं। तो अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिसे आपको अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए आपके अंदर इनकलकेट करना होगा। देखिए कितने आसान है। आप अपने आप से पूछिए कि आप जितना पानी है उतना पानी पीते हैं क्या, है ना? क्या आप उतना पानी पीते हैं जितना आपको चाहिए? अगर आपको पता नहीं चलता तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप पानी कम पी रहे हैं या आपके बॉडी के अंदर पानी कम है। आपको प्यास लगने लगती है, जब आपको बहुत प्यास लगती है तब तक तो ऑलरेडी आपका 2% वाटर आपके शरीर से कम हो चुका है ना? आपको मसल क्रैम्प आ सकते हैं, आप ध्यान से सोच नहीं सकोगे, शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी चीज के ऊपर। आप जो यूरिन पास करोगे उसका कलर डार्कर साइड में होने लगेगा, येलो की तरफ। आपका मुंह सूखने लगेगा, आपकी स्किन रफ होगी, है ना? आपको थकान लगेगी। ये मेरे साथ खास है, मुझे जब थकान लगती है मैं बोलता है मुझे लगता है पानी की जरूरत है, और मैं तुरंत पानी पीता हूँ, विद इन सेकेंड्स आई एम फ्रेश। तो क्या आप पूरा पानी पी रहे हैं, ये आपको पूछना चाहिए अपने सवाल। 8 सही समय जब आपको पानी पीना चाहिए, सुबह सुबह उठने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद आपको आपके आपके बॉडी ने बहुत सारा पसीना बहाया है, तो जो लिक्विड है बॉडी का वो पास हो गया है। ओके, खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको मदद करता है कि एक तो डाइजेशन के लिए मदद करता है, प्लस आपको थोड़ा फिल कर देता है और आपको प्यास नहीं लगने देता खाना खाने के बाद। नहाने से पहले ये आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद करता है। सोने से पहले, क्योंकि अगर आपको नींद डिस्टर्ब ना हो आपकी, और एकदम ज़्यादा भी नहीं पीना ना, तो फिर नींद डिस्टर्ब होगी। ओके, जब आप बीमार हैं आपके बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप बिना हाइड्रेशन के रह नहीं सकते। ओके, आप देखोगे जितने मरीज लोग होते हैं उनको तो सलाइन पहले चढ़ाया जाता है सबसे पहले। कई लोगों को तो सबसे पहले सलाइन चढ़ाया जाता है जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, है ना? जब आपको थकान महसूस हो, जो मैंने बताया मेरे साथ ज़्यादा होता है, और जब आप कई इन्फेक्टेड लोगों के आजू बाजू में, बीमार लोगों के अगल बगल में हो, तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन को सेटल नहीं होने देता, यूरिन के थ्रू पास ऑन कर देता है। तो ये सही टाइम है पानी पीने का। और वेट नहीं करिए कि जब आपको प्यास लगे तभी पीना है। अपने पानी एक रेगुलर टाइम पे पीते रहिए, 2 से 3 बॉटल, 2 से 3 लीटर आप पीते रहिए। हम अपने घर पे इस तरह से बॉटल भर के रखते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 लीटर की बॉटल है, तो 3 बॉटल भर के रखता हूँ। तो मेरा टारगेट होता है बाई 8 o'clock इन द नाइट मेरा पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हैबिट, अब आप अपने आप से पूछेगा साथ में, क्या पानी पीना क्या कोई डिफिकल्ट हैबिट है? आपको अपने खाने का पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। ओके, पोर्शन कंट्रोल करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके कम पोर्शन से भी आपके बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिल जाता है। और आपको पोर्शन कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यार 1 टेबल स्पून कितना होता है, 1 टी स्पून कितना होता है, 1 कप कितना होता है। वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। आप अपने हाथ को, पंजे को, मुट्ठी को, अंगूठे को यूज कर सकते हैं, हाथ के कप को इस तरह से बना के यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए कि आपको क्या चीज कितना खाना चाहिए। सिंपल है। प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं इतना सा, सब्जी खा रहे हैं एक मुठ भर, कच्चे की बात कर रहे हैं हम। ओके, अगर आपको फैट खाना है, अंगूठे का टिप वाला पार्ट ऊपर का, और आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वैसे तो आपको थोड़ा सा लेना है, लेकिन बनने के बाद एक मुठ इतना आना चाहिए। बनने के बाद एक हाथ का कप बना के, दोनों हाथों के कप बना के इतना,
ना आप ये बताइए कि क्या इस तरह से पोर्शन कंट्रोल में खाना की आदत बनाना डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने खाने को अच्छी तरह से चबा के खा रहे हैं अच्छी तरह से? बचपन में हमने बहुत पढ़ा होगा स्कूल में कि 32 बार हमें चबाना चाहिए। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसलिए ताकि आप खाना स्लो खाओ। जब स्लो खाओगे तो आप ज़्यादा नहीं खाओगे, सबसे पहले तो ये है। लेकिन जब आप स्लो खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह से ही डाइजेस्ट होना चालू करते हैं। जो आपका सलाइवा है, जो आपके मुंह से निकलता है, आपके मुंह में आता है, जो खाने के टाइम पे या खाने से पहले जब बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, यहाँ यहीं से हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना चालू होता है। तो ये डाइजेशन के लिए सही है स्लो खाना, क्योंकि फिर आप अपने पेट को थोड़ा कम मेहनत करने को देते हो। ओके, और क्योंकि आप कम खाते हो तो ये फिर आपका कैलोरी रिडक्शन कम करता है। क्योंकि आप स्लो खाते हो तो आपको लगता है कि आपने काफ़ी देर तक आपको लगता है कि आप काफ़ी देर तक आपका पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती बीच बीच में, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा नहीं खाते हो अननेसेसरी खाना। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से करोगे तो ऑब्वियसली जब आप खाना ज़्यादा नहीं खाओगे, आपको ज़बरदस्ती की भूख नहीं लगेगी, पेट आपका ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, तो ऑब्वियसली ये आपका हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए काम आएगा। ये इसके बेनिफिट है। और ये किस तरह से आप इसको खाने को या चबाने की प्रक्रिया को अपने डेली लाइफ में ला सकते हो, ये है सबसे बेस्ट। आप अपने मील का प्लान करके रखिए कि पूरे हफ्ते में आपने क्या खाना है। जैसे हम हैं, हफ्ते में 2 दिन हम जाते हैं खरीदने के लिए, खास करके सब्जियां। ओके, बाकी कई चीज़ें तो हम हफ्ते या तो महीने का भी खरीद लेते हैं। हमें पता रहता है कि हमें पूरे महीने के अंदर कितनी चीज़ की क्या ज़रूरत होगी, और उस तरह से हम सब्जियां लाते हैं, फ्रूट लाते हैं। आपके फूड को आप सबसे ज़्यादा फाइबर रिच फूड खाइए, क्योंकि फाइबर की कमी सबसे ज़्यादा है। मैं आज किसी से बात कर रहा था, वो प्रोटीन में बोले मैं बहुत खा लेता हूँ, मैं मटन खा लेता हूँ, फिश खा लेता हूँ, चिकन खा लेता हूँ, हालांकि उसके भी अलग अलग फ़ायदे नुकसान हैं। लेकिन फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा, फाइबर कहाँ है उसमें? फाइबर एक ये बहुत ही अंडररेटेड न्यूट्रिएंट है, जिसे हम लोगों ने इग्नोर किया हुआ है। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन मिनरल्स के बारे में बहुत बात करते हैं, फाइबर के बारे में नहीं करते हैं। क्योंकि आज अगर मैं किसी एक अच्छे ना, बम्बई में एक बहुत अच्छी थाली है जो 650 रुपया चार्ज करता है। मैं यूट्यूब में उसका रिव्यू देख रहा था, कोई फूड ब्लॉगर है वो दिखा रहा था। मैं जब उसे खाने को देखा ना, जब वो एक एक करके दे रहा था और वो बता रहा था ये है, ये है, ये है, आई थिंक उसके अंदर कम से कम 20 से 25 कटोरियाँ थी अलग अलग तरह की। लेकिन मुश्किल से सिर्फ 2 कटोरियाँ थी जिसके अंदर सब्जी थी। इतनी छोटी कटोरियाँ, पूरे ग्राम अगर मिला के जाएंगे तो उसके अंदर एक्चुअल सब्जी जो होगी, ग्रेवी को निकाल दें तो मुश्किल से 25 से 50 ग्राम, मुश्किल से 25 से 50 ग्राम। सलाद नाम का 2-4 टुकड़े काकड़ी के और 2-4 टुकड़े प्याज के। इमेजिन करिए हम खाने के साथ क्या कर रहे हैं। ओके, आप खड़े रह के मत खाइए, ये एक तरीका है। आप खाने के वक्त मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के ऊपर ध्यान न दें तो अच्छा है, क्योंकि उस वक्त हम ध्यान नहीं देते कि हम कितना खा रहे हैं। हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं। बात करते करते नहीं खाइए। देखो, बच्चों को इसलिए भगवान ने बनाया है जो वो पैदा होने का 6 महीने तक खाना खाना और रोना, क्योंकि बात तो नहीं कर पाते हो, एक साथ कर सकते हैं। हम दोनों चीज साथ में नहीं कर सकते। हम खाने को निगलना और बात करना दोनों साथ में नहीं कर सकते। ओके, तो इसको तो अवॉइड ही करिएगा। खाना स्लो खाइए। उसके लिए एक सही तरीका ये भी है कि जैसे हमने एक स्पून मुंह में डाला, अगर हम चम्मच से खा रहे हैं तो स्पून को छोड़ दीजिए। अगर आपने उसको स्पून को हाथ में रखा है तो इससे पहले कि आप पहला खाना निवाला निगलो, आप दूसरा मुंह में डाल दोगे, जिसकी वजह से फिर आपस वही होगा कि आपको ओवर ईटिंग हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगला, क्या आप अपने क्रेविंग को मैनेज कर सकते हो, कर रहे हो ना? क्रेविंग क्या है? देखो, हमारे शरीर से कुछ हार्मोन्स हैं जो अलग अलग क्या बोलते हैं, हमारे ऑर्गन से निकलते हैं और ब्रेन में जाते हैं, जो हमें भूख का एहसास कराते हैं, जो हमें पचाने का एहसास कराते हैं, जो हमें पेट फुल होने का एहसास कराते हैं। हमें उनको कंट्रोल करना है। किस तरह से कर सकते हैं?
आप हमेशा पानी पी के रहिए। आपको जब कभी ऐसा लगता है ना आपको भूख लग रही है अचानक, आप एक गिलास पानी पी के देखिए, आप उसका 10-15 मिनट रुकिए, 20 मिनट रुकिए, आपको अंदाज आएगा। क्योंकि जो सिग्नल जाता है ब्रेन में भूख का, वो सिर्फ भूख का है, वो ये नहीं बता रहा है कि वो फूड का है कि वाटर का है। वो सिर्फ ये बताता है पेट में कुछ चाहिए, कुछ कमी है, इतना ही बताता है। हो सकता है पानी की कमी का बता रहा हो, आप पानी पी के उसको सप्रेस कर सकते हो उस भूख को। और अगर फिर भी खाने की इच्छा हो तो आपके हाथ में कुछ हेल्दी फूड रखिएगा। जैसे हमारे घर पे हम बिस्किट बिल्कुल नहीं रखते हैं, नमकीन बिल्कुल नहीं रखते। और अब तो हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं उन्हें भी पता है, यहाँ जाओगे तो हम तो पूछते हैं उनको बेशरम होके कि हम तो बिस्किट नहीं खाते, हम उसको खराब मानते हैं, अगर आपको चाहिए तो हम नीचे से मंगा के आते हैं। एंड देन जैसे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। और उसका फ़ायदा ये आस्ते आस्ते अब ये हो गया है कि जब हम उनके घर पे जाते हो तो वो भी हमें ऑफर नहीं करते, है ना। तो हेल्दी फूड को आप अपने हाथ में रखिए। और अगर आपने प्रोटीन अच्छी तरह से अपने मील में इंक्लूड किया है तो वैसे भी आपको फूड की क्रेविंग नहीं होगी, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्ट होने को टाइम लगाता है। और जब डाइजेस्ट होने को टाइम लगाएगा तो आपको ज़्यादा देर तक ऐसा लगेगा पेट में खाना है, भूख नहीं लगेगी। और ये चीज़ जो हमें सबसे, बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर जिसका हमें पता ही नहीं है, वो है स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को कम रखिए, रिड्यूस करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम स्ट्रेस में ऐसा खाना खाना चालू करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना। ना, पांचवी हैबिट, क्या हम अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं। इमेजिन करिए, क्या हमने कभी इसके ऊपर कभी सोचा है? लेकिन अगर आप दिन भर में 20 से 30 मिनट तक अगर आपने अपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत बन जाएगी। इमेजिन करिए जैसा शुरुआत में ब्रश आपको जबरदस्ती दिया गया था, ये जबरदस्ती दिया जाएगा, फिर आस्ते आस्ते हो जाएगा। आप इसको इस तरह से देखिए, जब किसी बच्चे को अगर आप सोते हुए देखोगे तो आप देखोगे जब वो सांस ले रहा है तो उसका पेट भी ऊपर नीचे होता है ना। इसका मतलब ये है कि उसकी सांस, उसकी जो जो भी अंदर ले रहा है हवा, बेसिकली अंदर जाके तो ऑक्सीजन हो जाए, वो उसके पेट तक जा रहा है। और उसके सांस के बीच में गैप है, एक सांस से दूसरे से निकलने के बीच में गैप है, क्योंकि वो अंदर तक जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। क्या हम ऐसा सांस लेते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा हमारा सांस ज़्यादा है पर मिनट, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हम अंदर तक सांस नहीं ले जाते, हम सिर्फ यहाँ तक ले गए, यहाँ से बाहर निकाला, फिर लिए, फिर बाहर निकाला। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ कुछ, जैसे कि ये है डायफ्रैग्मेटिक, एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें आप सांस नाक से लेते हो, कुछ देर तक पेट में रखते हो और फिर मुंह से निकालते हो। एक नेजल ब्रीदिंग है जिसमें आप नाक से लेते हो और फिर नाक से निकालते हो। इसमें टाइम का आप गैप रख सकते हो, ये अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के कैसे ऐसे ब्रीदिंग होती है। ओके, उसी तरह से आपका मुंह से सांस लेना, मुंह से सांस लिया, मुंह से निकाला। तो 3 टाइप है, नाक से नाक से लिया, मुंह से निकाला, दूसरा है नाक से लिया, नाक से निकाला, और दूसरा है मुंह से लिया, मुंह से निकाला। प्राणायाम, ये अलग अलग सांस लेने की टेक्निक्स है। प्राण मतलब लाइफ और आयाम मतलब एक्सपेंशन। ओके, आप अपने लाइफ को बढ़ाते हो इससे, आप अपने लाइफ को अच्छा करते हो इससे। अब इसमें अलग अलग टाइप की है, बैलेंसिंग है, काल्मिंग है, एनर्जाइजिंग है। तो उसमें आप क्या करते हो, जैसे एग्जांपल मैं आपको पहला बताता हूँ। पहले वाले में जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 6 सेकंड तक आप इनहेल करते हो, मतलब सांस 6 सेकंड तक लेते रहते हो। ओके, उसके बाद रोकते नहीं हो अंदर और फिर 6 सेकंड तक निकालते हो, और फिर रुकते नहीं हो, फिर अचानक 6 सेकंड से लेते हो। तो इस तरह से आपका आना जाना सांस का अंदर लगा रहता है। दूसरा है 8 सेकंड तक लेते हो, 1 सेकंड रोकते हो, फिर 8 सेकंड निकालते हो और 1 सेकंड रोकते हो। तो ये अलग अलग टेक्निक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो अलग अलग टेक्निक को। ओके, एक एक टेक्निक अगर आपने 5-5 बार भी करी, दिन में अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हो, आप देखिए कितना फर्क आता है आपके अंदर। छठी आदत, अच्छे से सोना। आज की डेट में जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है
लोगों को तो लगता है कि बस अब तो हम घर पे ही आराम ही कर रहे हैं, बट नहीं, नींद काफ़ी कम हो गई है, अच्छी नींद कम हो गई है। और जब अच्छी नींद नहीं होगी आपकी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपके वेट गेन करने की, अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली है तो। अच्छी नींद लेने के फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि आप एकदम फ्रेश रहते हो, आप कंसंट्रेशन अच्छी तरह से कर सकते हो, आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, आपका दिमाग अच्छी तरह से चलता है, तो आप अच्छे क्रिएटिव बनते हो, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। आपने करना क्या है? आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव थिंग से बाहर निकल जाना है। ओके, किस तरह से आप अपनी अच्छी नींद कर सकते हो? ये देखिए, आप सोने से पहले बाथ ले लो। मैं कहीं किसी को सुन रहा था, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि जब भी आपको बाथ लेना है तो ठंडे पानी का बात और गर्म पानी का बात दोनों अलग अलग है। सुबह उठ के आपको ठंडे पानी से बात लेना चाहिए। तो इनफैक्ट वो टाइम पे इंटरव्यूअर ने उसको पूछा भी कि क्या दिल्ली की सर्दी में भी आप ठंडे पानी का बात लेने बोलोगे? बोला यस, बिल्कुल, और मैं गारंटी देता हूँ कि मरोगे नहीं। 2-3 दिन आपको तकलीफ होगी, लगेगा अजीब, लेकिन उसका आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी। इनफैक्ट जब आप पहली बार पानी डालोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए झटका लगेगा और आप पूरा शरीर आपका हिल जाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीड इन द मॉर्निंग। आपको एकदम जागना है तो आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। लेकिन रात को जब आप नहा रहे हो तो बोलता है कि गर्म पानी से नहाइए, क्योंकि दिन भर की थकान को रिड्यूस करेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। तो सुबह का नहाना ठंडे पानी से और रात का नहाना गर्म पानी से। पजामा पहनिए, बाल बनाइए, ब्रश करिए और किताब पढ़िए, रादर देन मोबाइल को पढ़ने के या मोबाइल को देखने से, है ना। अपने अंगूठे को जरा आसान आराम दीजिएगा दिन भर, रात के टाइम पे सोने से पहले। और एक कहा ही जाता है कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 2 से 3 घंटे पहले आपको स्क्रीन से बाजू में हट जाना है, क्योंकि उसकी जो ब्लू लाइट आती है वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल ऐसा देती है कि अभी भी जागने का समय है, सोने का समय नहीं हुआ, लेकिन सोने का समय हो चुका होता है। ओके, सोने से पहले ना खाएं, तकरीबन 2 से 3 घंटे का गैप रखें और अपनी नींद को देखें। एक आम इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी पड़ जाती है, जो नॉर्मल इंसान होता है। अब नॉर्मल इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको 4 घंटे की नींद कंटिन्यू काफ़ी है, और कुछ अब नॉर्मल ऐसे भी होते हैं जिनको आप 10 घंटा 12 घंटा भी सुला दो डेली तो भी उनको नींद पूरी नहीं पड़ेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कितने घंटे की नींद काफ़ी है, और उसका बेंचमार्क एक ये है कि दोपहर को अगर आपने पेट भर के खाना खाया फिर भी आपको नींद नहीं आनी चाहिए, जरा भी आलस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपने रात में अच्छे से सोए हैं। और एक अच्छी चीज़, अच्छी हैबिट जो आपको अपने अंदर डालनी है वो है नेगेटिव थॉट से आप बाहर आ जाइए, पॉजिटिव थिंकिंग में आइए। इसका साइकिल कैसे बनता है? क्योंकि आप जो सोचते हैं इससे डिसाइड होता है कि आपकी बिलीफ कैसी रहेंगी। आप जो आप सोचते हो उससे आप क्या मानने लगोगे, ये डिसाइड होता है, और उसका असर आपके फीलिंग पे पड़ता है, और जिसका उसका 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 उसके प्रभाव से फिर आपके एक्शन बनते हैं। जैसे फीलिंग होगी वैसा एक्शन होगा, और जैसे फिर एक्शन होंगे उससे फिर आपके थॉट्स होंगे। तो एक ये साइकिल है। अब इसमें आपने अगर पॉजिटिव थॉट पहले डाल दिए तो आपके बिलीव ऐसे अच्छे बनेंगे, आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, आपके एक्शन अच्छे आएंगे, फिर आपका पॉजिटिव थॉट आएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपने थॉट्स अगर नेगेटिव डाल दिए तो सारी चीज़ उल्टी हो जाएंगी आपके लिए। तो नेगेटिव थॉट से दूर रहिए और उस पर आइए, पॉजिटिव थॉट पे आइए। आप पॉजिटिव थॉट के लिए मैं जो सोल्यूशन मेरे लिए लेता हूँ वो ये है कि आप एक ये ट्राई कर सकते हो कि आप रादर देन थिंकिंग ऑन इशू या जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप इसके ऊपर अगर सोचना चालू करो कि उसका सोल्यूशन क्या क्या है, तो रादर देन प्रॉब्लम मोड से अगर आप सोल्यूशन मोड पे आओगे तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई एक रे ऑफ होप दिखेगा, मतलब आशा की किरण दिखेगी, जिसके वजह से आपको लगेगा कि यार हाँ, रास्ता है मेरे पास। एंड सडनली आपका जो बॉडी के अंदर जो गलत केमिकल बन रहे थे नेगेटिव थॉट की वजह से और टेंशन की वजह से, वो आपके
पॉजिटिव थॉट में हो जाएगा। और जब आप हमारे साथ जुड़ के वेट मैनेजमेंट की जर्नी करते हो, उसमें आप देखिएगा पॉजिटिव थॉट का मैजिक क्या है, किस तरह से आपको हेल्प करता है वेट रिड्यूस करने के लिए, ये भी आपको देखने मिलेगा। आपको सोशल ट्रिगर्स कुछ होते हैं, उससे अलग होना पड़ेगा। जैसे आप थिएटर में गए, आपने वहाँ उल्टा सुल्टा स्नैक्स खा लिया, है ना, और प्लस आपने फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ नहीं करी क्योंकि आप बैठे हो 2-3 घंटे। किसी होटल में गए, ब्रेकफास्ट स्प्रेड बहुत अच्छा था, ये मेरा वीकनेस है बट आई ट्राई टू मैनेज दैट, है ना। आप इसको इस तरह से देखिए कि अभी जो हम लोग ये जो 12-13 जो हम प्रोग्राम करते हैं, ये मैं नॉर्मली इसको इस तरह से करता हूँ सिंपल तरह से समझाने के लिए। ये एक MBBS कोर्स है, समझिए। नो, लिटरली MBBS मत पकड़िए, अगला सेंटेंस बोलूँगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको MD बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको पहला ये कोर्स तो करना पड़ेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि ऐसा ब्रेकफास्ट स्प्रेड नहीं खाइएगा, लेकिन अगर आप खाते हो तो उसके लिए करना क्या है, ये आपको MD कोर्स में सिखाया जाएगा। तो ये चीज़ों को अपने ध्यान में रखना, ओके। ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जैसा मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ, और फिर मेरा पसंद भी यही है कि आई ट्राई स्ट्रीट फूड्स एट प्लेसेस। लेकिन फिर उसको मैनेज कैसे करता हूँ, मैं स्ट्रीट फूड तो दिन भर में खाता रहता हूँ वहाँ पर, बट देन आई वॉक अराउंड 15 to 25 किलोमीटर इन अ डे। तो जितना खाया उतना निकालते चला गया, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो बैलेंस कैसा होता है, आई ईट लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द मॉर्निंग, इवनिंग में भी, एंड प्रोटीन का कोटा पूरा कर लेता हूँ अपने दिन भर से ना। बोलने का मतलब सिर्फ ये है शुरुआत में कि जो भी सोशल ट्रिगर्स हैं आप उससे थोड़ा बच के रहिए, उसके रास्ते निकालिए कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो। तो उसके रास्ते छोटे बहुत ये हैं कि आप अपने हाथ में हेल्दी स्नैक्स रखिए। जब आप समझो अगर आप कहीं ऐसी जगह भी जा रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि मुझे कुछ गलत ही खाने को मिलेगा, गलत स्नैक्स खाने मिलेगा, आप अपने साथ में ले जाइए कुछ हेल्दी स्नैक्स। आपके खाने के टाइम को आप स्टिक करके रखिए, है ना, कि दोपहर का टाइम इतने बजे तो उतना बजे ही होगा, सुबह का जितना बजे तो उतने बजे ही होगा, रात का जितना बजे तो उतने बजे ही होगा। ट्रैवल करने से पहले आप प्लान करके रखिए आप क्या खाओगे, कैसे खाओगे। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं भी बैंकॉक था 15 दिन के लिए, मुझे पता था वहाँ नॉन वेज ही नॉन वेज मिलने वाला है। मुझे वेज में सिर्फ उधर एक ही चीज़ मिला, स्टिकी राइस और मैंगो। आप इमेजिन करो ना, स्टिकी राइस मैंगो कौन कितना खा लेगा। तो मैं प्लान करके पहले से चला गया था। आई टुक सम फ्रूट्स विथ मी, और बाकी वहाँ पर मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदता रहा, बेसिकली सलाद, ओके। मैं यहाँ से प्रोटीन ले गया, मील रिप्लेसमेंट ले गया, ओट्स ले गया, और इस तरह से मैं अपना ब्रेकफास्ट, नाश्ता और डिनर मैनेज कर रहा था। उसके अंदर फाइबर ले गया साथ में, क्योंकि मुझे मालूम था शायद नहीं मिले तो क्या करना है। सो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। मैं कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में वैसे तो मैं खाना खाने नहीं जाता, लेकिन अगर कहीं मुझे लग रहा है कि आज जाना है, कुछ मेहमान आए उनको ले जाना है, या फिर साल में 1-2 बार हम चले जाते हैं, आई मेक श्योर, आप शायद सुन के हंसोगे, बट आई मेक श्योर आई टेक काकड़ी, गाजर अपने साथ में, और होटल में घुसने से पहले मैं कार में बैठ के उसको खा लेता हूँ। दिस इज हाउ, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ सलाद के नाम पे वो क्या देने वाला है। आप कहीं इवेंट में जा रहे हैं, उससे पहले आप कुछ अच्छा हेल्दी खा लो, ओके। आपको माइंडफुल ईटिंग करना है। माइंडफुल ईटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर से आता है क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ओके। माइंडफुल ईटिंग करिए आप। टेबल एटिकेट्स आपको पता होने चाहिए, पोर्शन साइज पता होना चाहिए, कितना कैसे खाना है, कितना स्लोली खाना है, क्या चीज़ नहीं खानी है ना। और ये पॉटलक, पॉटलक एक अलग सी चीज़ है। उसमें जैसे कि अगर आपको पता नहीं पॉटलक क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जिसमें कुछ दोस्त लोग आपस में मिलते हैं, बोलते हैं तू अपने घर से एक चीज़ ले आ, तू अपने घर से एक चीज़ ले आ, तू अपने घर से एक चीज़ ले आ। इस तरह से 8-10 से जितने भी लोग हैं सब अपने घर से कुछ कुछ चीज़ ले आते हैं और फिर मिल के खाते हैं। क्या आपको पता है कि आप तो नॉलेजेबल हो, लेकिन वो नॉलेजेबल उतने नहीं है कि किस तरह से बैलेंस डाइट होना चाहिए, बैलेंस खाना कैसे होना चाहिए, उन्हें नहीं पता। तो आप अगर एक चीज़ अच्छी ले भी जाओगे, बाकी 9 चीज़ें उधर खराब रहेंगी, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। अवॉइड कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ओके।
फिर 9वीं हैबिट, आर यू मूविंग इनफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी बैठे बैठे काट रहे हो या हिलडुल के काट रहे हो, है ना? बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। एक तो सबसे पहले आपको हेल्दी वेट मैनेज करने के लिए काम आता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाने के लिए काम आता है, ये आपके ब्रेन हेल्थ को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। अगर आप चल लो 40 मिनट से 1 घंटे के बीच, आप ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि जो आपके मूड एलिवेट करने का जो केमिकल है, जिसको एंडोर्फिन्स बोला जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। आपको गुस्सा कम आएगा, आपको टेंशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, आपको स्ट्रेस वाली भूख नहीं लगेगी, है ना? अच्छा वॉकिंग आपको अच्छी नींद दे सकता है क्या? देता ही है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अगर उसको कैलकुलेट करो तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो कि आपने 8 बजे खाना खाया, 8:30 बजे वॉक को निकले, 9:30 बजे घर पे आए, नहाए धोए, 10 साढ़े 10 तक सो गए। आपके सारे 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 टारगेट्स उसमें मिल जाते हैं। आपने जल्दी खाना खा लिया, आपने सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लिया, आपने सोने से पहले वॉक कर ली, आपका डाइजेशन भी अच्छे से हो गया, फिर आपने गर्म पानी से नहा लिया, आपको बहुत अच्छी नींद आ गई, फिर आपकी नींद अच्छी होगी, आपका सुबह अच्छा होगा, अगला दिन अच्छा होगा। आप इसको इस तरह से पूरा अटैच करिए एक दूसरे से दूसरी एक्टिविटी को। अच्छी वॉकिंग आपके टेलोमेयर एक्टिविटी को इनहेंस करता है। ना व्हाट इज टेलोमेयर एक्टिविटी? टेलोमेयर एक्टिविटी इज बेसिकली आपके सेलुलर एजिंग को स्लो करना को कहा जाता है टेलोमेयर एक्टिविटी। अगर आपके सेल्स अगर आहिस्ता आहिस्ता एज करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी आहिस्ता आहिस्ता एज करोगे, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, सारे सेल्स के बंडल हो, मैं भी। ओके, तो वॉकिंग से आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो होती है, इससे आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में डिक्रीज होता है। ज़्यादा चलने से या वॉकिंग करने से या फिर बॉडी को एक्टिव रखने से आप क्या, जो सैटेलाइट सेल्स हैं, ये आपके स्केलेटन मसल को प्रोटेक्ट करके उसको अच्छी क्वालिटी में रखता है। तो एक्टिविटी करने के लिए या फिर ज़्यादा वॉक करने के लिए, ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए क्या है, ये कुछ टिप्स हैं। चलने अपने, अगर आपका घर फ्लैट में है, किसी अपार्टमेंट में है, तो रादर देन टेकिंग लिफ्ट, आप स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हो। घर पे बैठे बैठे टाइम पास करने से अच्छा है किसी दोस्त से मिलने चले जाओ। आपको थोड़ा सा भी अगर ब्रेक मिला है, थोड़ा वॉक कर लो, या आप अपने ऑफिस में कर सकते हो। ओके, जब भी अगर आपका ऑफिस घर से अगर 3-4 किलोमीटर की दूरी तक है, मैं तो बोलूँगा कि आप चल के जाइए, और हो सकता है अगर बस से आप 1 घंटे पहले उतर जाइए, सॉरी, जहाँ भी आपका ऑफिस है, ऑफिस से कुछ आधा 1 किलोमीटर पहले उतर जाइए, ताकि आप वो चल के जा सकते हो। आपको ऑफिस में किसी को कुछ मैसेज भेजना है, रादर ऐसे मैसेज जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लीगल, मतलब जो ऑफिशियल उतने इंपॉर्टेंस के नहीं है, वो आप वॉक करके उसके पास चले जाइए, उनसे बता दीजिए। आपके स्टोर तक आप चल के जाइए, रादर देन आप मोबाइल के ऐप पे आप ऑर्डर दो। ओके, जब भी आप टीवी देख रहे हो और कॉमर्शियल ब्रेक है, उठे में थोड़ा घर के अंदर भी चल लो, जरूरी थोड़ी बैठ के देखना है। ओके, ये कुछ तरीके हैं जिसके वजह से आप अपना एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। अब आ जाते हैं आपके इमोशंस पे, जो हम अगेन टेंशन की बात करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं, उसके ऊपर आ जाता है कि आप अपने इमोशन को क्या फीड कर रहे हो, पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस दे रहे हो या हैप्पीनेस दे रहे हो। क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को आप स्ट्रेस दोगे, तो उस वक्त एक ना खाने का ट्रिगर होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब कभी आप आदमी, इसको एक तरह का ईटिंग हैबिट बोला जाता है। जब आप कुछ टेंशन में होते हो, कभी कभी आप खुशी में भी खाते हो ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं देखा गया, ज़्यादा देखा गया टेंशन में। मुझे मालूम है कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी, ये अभी की बात नहीं है, आज से मैं तकरीबन 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैंने
पूरा 400 ग्राम जैम की बोतल खत्म कर दी थी रात के तकरीबन 1:30-2 बजे। 400 ग्राम जैम आज की डेट में सोचता हूँ, मुझे समझ में आता है, उस वक्त तो पता ही नहीं था कि कितनी कैलोरी और कितना शुगर डाल रहा हूँ बॉडी के अंदर। लेकिन उस वक्त एक रात में मैंने 400 ग्राम जैम खा लिया था। पता नहीं, कुछ टेंशन था, नींद नहीं आ रही थी, घर के अंदर ही घूम रहा था। एंड सडनली फिर पता नहीं क्या हुआ, फ्रिज खोला, देखा जैम की बोतल पड़ी है, पूरी जैम की बोतल खा गया। और उस वक्त हम कंपनी में ऐसे काम करते थे जिसके पास एक ब्रांड था जैम का। ओके, और जैसे कि इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, अगर आप देखोगे ये फूड ज़्यादा करके हाई इन शुगर होते हैं या फिर अनहेल्दी फैट्स होगा, और वही मेरे साथ हुआ। और ये सब खाने के बाद फिर गिल्ट भी होता है, यार क्या गलत खा लिया, है ना। और फिर उससे वापस से फिर आपको टेंशन, फिर आप वापस से फिर वही कंफर्ट फूड की तरफ जाना चाहोगे। तो ये ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपके इमोशन को कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, उन चीज़ों से दूर रहें। और अगर आ भी गया है तो उसको सॉल्व करने का आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। ओके, वॉकिंग है, रीडिंग है, टाइम पे सोना है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर माइंडफुल ईटिंग हैबिट, कि जब भी आपको खाने की कुछ इच्छा हो तो आपको सोच के समझ के, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग हैबिट जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप माइंडफुल ईटिंग हैबिट को समझ गए तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है आप अपने आप को संभाल लोगे खाने के मामले में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना एक गोल सेट करना जरूरी है। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है या वो देखना है, बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ में उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार होना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे। जैसे कि मैंने जब अपना वजन कम किया था तो टारगेट वाज अराउंड 30 kg, 30 kg के आसपास था, 30-35 kg के आसपास। तो टारगेट ये था कि हम 2.5 से 3 किलो कम करेंगे हर महीने। तो वो रोड मैप था। अब उसके लिए फिर हम क्या करते थे, डेली मेजर भी करते थे, उसमें हम आगे आएंगे। तो पहले हमने रोड मैप बनाया कि मुझे कितना वजन कम करना है, फिर हमने उसको ब्रेक डाउन किया कि हर महीने कितना 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 करेंगे। ओके, इस तरह से आप छोटे छोटे स्टेप में उसको डालोगे और वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। जैसे कि आप घर से कभी घूमने जाते हो बाहर, समझो 10-15 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, कितने चीज़ प्लान करते हो आप कि घर का कोई काम तो बाकी नहीं रह गया, घर का कोई सामान है तो नल या तो गैस का नल खुला तो नहीं रह गया, आपको जब जाना है तो क्या आपने उसकी टिकट पहले से बुक कर रखी है, होटल बुक कर रखे हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करोगे, कितने बजे आप टैक्सी बुलाओगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या सामान आप पैक करके ले जाओगे इस घर से, है ना। ये सारी चीज़ें आप प्लान करोगे। तो इस तरह से आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ से और किस तरह से आप इसको करोगे। रियलिस्टिक गोल, एक गोल तो रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो आपको भी पता है कि कभी नहीं होगा आपसे। इसके लिए फिर आपको क्या करना है, आपको एक आपका एक मेंटोर होना चाहिए जिसे पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो आपको बताएंगे किस तरह से होगा क्या नहीं होगा, और फिर उसको फिर आप छोटे छोटे में आपको ब्रेक करके देंगे। आपको एक रोल मॉडल आपके सामने होना चाहिए जिसको आप देख के इंस्पायर होते रहो। एंड हमारे टीम के अंदर फारूक से अच्छा रोल मॉडल और कौन हो सकता है। मुझे याद है जब भी मैं मीटिंग में जाता था या उनसे मिलता था, और अनाइटा मुझे मिलती थी, उनकी मिसेस का नाम है अनाइटा, वो मेरे पेट पे ऐसा थपथपा के बोलती थी, मनोज यू शुड बिकम लाइक हिम। और मैं तो पता ही नहीं लगता था, मुझे लगता था अनरियलिस्टिक है, हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं अभी भी उनके ऐसा नहीं हूं, लेकिन चाहूं तो हो सकता है। ओके, अपने गोल को आप स्मॉल स्मॉल में बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 36-35-36-40 किलो को 3-3 किलो के उसमें ब्रेक किया था। फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड देने की करिए, जैसे इंसेंटिव कहते हैं ना कि आपने इतना कर दिया तो आप अपने आप को ये रिवॉर्ड दोगे, भले वो कितना ही छोटा हो। और ये सब चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट लगेगा एक आदमी, एक इंसान का जो मेंटोर है आपके लिए, और सपोर्ट लगेगा ऐसे लोगों का जो आपके साथ में इस तरह से सोचते हैं, है ना। क्योंकि कहावत है, कहावत नहीं है, हकीकत है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप 5 साल रह जाओगे, 5 साल बाद 95% चांस है कि आप उनके जैसे हो जाओगे। आप अपने बच्चे को या किसी टीनेजर को, किसी, इनफैक्ट मैं टीनेजर भी कहाँ बोलूँ, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा यंग होगा तो भी चल, थोड़ा और ओल्डर होगा तो भी चलेगा, आप किसी नशेड़ी के साथ रहने दो उसे, गारंटीड है अगले 5 साल के अंदर वो
उसके अंदर भी वही नशे की आदत हो जाएगी। क्यों ऐसा कहा जाता है कि सेल्स वाले लोग तो दारू पीते ही हैं? आई थिंक यही उसका कारण है, क्योंकि जब वो कंपनी ज्वाइन करता है उस वक्त तो नहीं पी रहा होता है, लेकिन जब उसके साथ में जिस तरह के लोग उसको मिलते हैं उससे उसकी आदत बन जाती है आस्ते आस्ते। और आपको हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना है, जिसके लिए अगेन आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, मेंटर और ग्रुप की, जो आपको यहाँ मिल जाता है ना। और जो हमने बात करी थी अभी कि किस तरह से आप अपने गोल को ब्रेक करोगे और उसको फिर ट्रैक करोगे, ये आपका डेली होगा, वीकली होगा, मंथली होगा। आप डेली में आप ये देखोगे कि आपको डेली कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, क्या क्या खाना खाना है, कितना सोना है, कितना आपको पॉजिटिव रहना है, कितना एक्सरसाइज करना है, ये आपका डेली ट्रैक्शन होगा। वीकली आप देखोगे कि आपका बॉडी वेट, फैट परसेंटेज कितना है, कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ। हालांकि आप उसको आप डेली भी कर सकते हो, हम डेली करते थे और हमारे ग्रुप में कई लोग हैं जो डेली करते हैं इसको। ओके, फिर मंथली आप देख सकते हो कि पूरे महीने में आपको कितना मिल गया, कितना अच्छा मिल गया, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या, ये आप अपने मेंटर के साथ में रह के कर सकते हो। ओके, तो इतना सब पढ़ने के बाद अगर आप इस स्लाइड को देखो तो उसमें 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं और उसमें क्या क्या आपको करना है उस नंबर के साथ वो लिखा गया। सबसे पहले आपको 0 प्रोसेस फूड खाना है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो प्रोसेस फूड आपको नहीं खाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा सेंटेंस मैंने जो सुना है वो ये है, प्रोसेस फूड हमेशा पैकेट में आएगा, है ना। तो जितना आपका पैकेट खुलेगा उतना आपका पेट फूलेगा, समझे। जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा। तो नो प्रोसेस फूड, नो पैकेट फूड। एम फॉर एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज और रीडिंग डेली। ये और मेरे ख्याल से हिंदी का होना चाहिए कि 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है और 1 घंटा पढ़ना है, अगर आप पढ़ सको 1 घंटे तो। ओके, कंज्यूम एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। 2 से 3 लीटर पानी रोज पीजिएगा। 3 कप आप ग्रीन टी या फिर ग्रीन जूस पीजिएगा। ओके, 4 मेंटल ब्रेक और स्ट्रेच ब्रेक लीजिएगा, है ना। जब आप बैठे बैठे काम कर रहे हो, फोकस सारा उधर है, थोड़ा उसको डाइवर्जन दो, थोड़ा स्ट्रेच ले लो बैठे बैठे। 5 चीज़ें ऐसी रिफ्लेक्ट करिए आप, जिसके ऊपर आप ग्रेटफुल हो, जिसको आप धन्यवाद करना चाहते हो रोज। ऐसी 5 चीज़ें। रोज सुबह 6 बजे मेडिटेशन करो। 7 मिनट कम से कम हंसिए जोर से, है ना। मतलब खाली स्माइल नहीं, हम खाली मुस्कुराने की बात नहीं कर रहे हैं, हंसने की बात कर रहे हैं, लाफ की बात हो रही है, स्माइलिंग की बात नहीं हो रही है। 8 घंटे की नींद, रात को 9 बजे सोने की तैयारी, और रोज के 10,000 स्टेप। इस तरह से आप 0 से लेकर 10 तक की चीज़ों को याद रख सकते हो, और इन आदतों को अगर आपने डाल दिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिव फर्क दिखेगा, बहुत सारी चीज़ों में। ओके, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको शाइन करना है। आपको हर दिन सुबह उठकर ग्रेटफुल होना है उन चीज़ों के लिए जो आपके लाइफ में हैं। ओके, आपको आपका न्यूट्रिशियस फूड खाना है। आपके गोल्स, आपके इंटेंशन आपको क्लियर होने चाहिए, नई चीज़ सीखनी चाहिए, और एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। आप ये सब करते रहो, हैबिट बनाते रहो। देखो, हैबिट बनने में टाइम लगेगा, इट इज़ नॉट 1 डे जॉब। लेकिन अगर आपने अच्छी आदत बनाई, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप खुश रहोगे। लेकिन अगर आपने गलत आदत बनाई, आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे और आप कभी खुश नहीं रहोगे। चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुचिता, ओवर टू यू। Thank you, Manoj. Thank you for summarizing that. Thank you for walking us through all the steps that we have been going through all these weeks. And I hope it has helped everyone to understand these small steps, these consistently taken can help us lead a very healthy life. With that, we come to an end of this session. But before we leave, I would like to remind we have a very special session coming up this Friday with Farooq. And trust me, guys, the questions you don't even have in your mind yet,
are going to be answered there. So please make sure that you're there and you're there with your friends and family. With that, we come to an end. Thank you, everyone. You've been a great audience, and see you in the next session.